Hey learners, welcome to this Officer Mind YouTube channel platform, and in this video session I will be talking the relevant things which is important for your polity examinations. Like if you are preparing for the CDS, so it's important only for you. Whether it's your first attempt, second attempt, I have already told in the previous videos that कि अगर कोई भी attempt रहे आपका, it doesn't matter. So without wasting that much of time, I'll just say कि हाँ, this video is only for you because of the few reasons. I'll tell what is relevant for the polity, क्या क्या चीज़ें relevant हैं, and what you have to study and what you have to leave. Like what to give the support to the current affair of the polity, like current affair को linkage करना है कि नहीं polity के साथ at this stage, because 30 crucial days is left my dear friends, and you cannot just live that 30 days like giving up. You should not giving up this 30 days, ठीक है. You should be have to be like कि नेवर गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड है वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी. सी माई फ्रेंड्स, जेम जो होता है यार, जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन एंड मैन कैन नॉट बी परफेक्ट विदाउट द ट्रायल. ओके, सो this was a quotation which I have feel to say, and without wasting that much of time I'll quickly move on the session ki what we have to study. Like talking about the polity, yeah, I have analysis from the previous year question paper, like seeing the 4-5 past year papers, and वहाँ से मैं analyze करके आया हूँ, and I have seen that कि questions is asking theoretical basis rather than on the dynamic basis. Dynamic basis से questions आते हैं, like 10% of the questions come from the dynamic basis, like dynamic in the sense of current affair basis. Yeah, they link is the questions with the current affair, like if president is being formed in this new country, so president का क्या क्या rule है, impeachment के क्या क्या process है and all that. So ये चीज़ें हो जाती हैं. लाइक पॉलिटी में थियोरेटिकल चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट कि यू कैन नॉट leave that topic. I have chosen the polity today because polity is much more easier comparatively of the history, and it doesn't mean that history is tough, but yeah, comparatively it's easy because इसमें factual चीज़ें पढ़नी होती है. Like you do not have to focus more on the data part because UPSC doesn't focus on the data part, right? So like I have taken down in the slides that what is more important, most important. Like I have written here the sources mean that what are the sources of our constitution. Like I have remembered the questions, like the questions is being asked in the CDS paper, like in the match the following 2009 or 10 something like this. Previous question में question पूछा गया था, like आयरलैंड से क्या चीज़ें ली गई है, like what we have taken from Germany, what we have taken from the अफ्रीका एंड समथिंग लाइक दिस. सो क्वेश्चंस जो होते हैं मैच द फॉलोइंग में सोर्सेज से थ्रू पूछे जाते हैं. लाइक दे कैन बी आस्क इन वन वर्ड ऑल्सो, लाइक हमने आयरलैंड से क्या लिया है. सो just to go through this you have to read the sources, and sources is bit important because sources is easiest part and you cannot let this topic down. So I have written these more important topics which is being asked in the previous year question paper. So sources is important, right? So एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा, लाइक यू हैव टू राइट ऑल यू ऑल हैव, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो यू हैव टू राइट दिस ईजीएस्ट क्वेश्चन इन योर कमेंट सेक्शन. सो क्वेश्चन इज दिस कि हमने कनाडा से क्या बोरो किया है, राइट? हमने कनाडा से क्या बोरो किया है. ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इंडिया एज अ यूनियन स्टेट विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन. ये चीज़ें बोरो किया है, या फिर नन ऑफ दिस. पहला क्या बोला मैंने, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या इंडिया एज अ यूनियन स्टेट विथ अ ग्रेटर पावर टू द यूनियन. अब मैंने ये वर्ड तो बोल दिया, इसका मतलब भी तो समझा देता हूँ यार. लाइक आंसर तो यही है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विथ अ ग्रेटर पावर टू द यूनियन. लाइक यूनियन का मतलब ये होता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है कंपेरेटिवली ऑफ द स्टेट. सेंटर कैन टेक मोर एक्शन कंपेरेटिवली ऑफ द स्टेट. सो इसका मतलब यही होता है, राइट? सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ प्रीएम्बल. Preamble is very important my friends. Preamble में आपको पता होना चाहिए कि which word has been inserted, which amendment is important. Like amendment 42nd amendment से क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी. I just change the slide and let you know. Yeah. So like 42nd amendment act से क्या चीज़ें insert किया गया था, ठीक है? So you should know that socialist, secular are the words which has been inserted. Like क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, लाइक चार ऑप्शन दिए जाएंगे, लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी. अब पूछा जाएगा इंटीग्रिटी. प्लीज डोंट गो अप ऑन माई स्पेलिंग बिकॉज इट्स
I know it's not legible to you. So social is secular, dignity and integrity. So इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऐड नहीं किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से? सो यू शुड नो कि हाँ डिग्निटी ऐड नहीं किया गया था. ये नॉट वाले जो क्वेश्चन है ना यार, यूपीएससी यार इट्स अ फेवरेट पार्ट. और यहाँ पे वो खेल जाती है और हम देखते नहीं नॉट वाला पार्ट को, एंड वी जस्ट टिक सोशलिस्ट इज द फर्स्ट वर्ड एंड वी जस्ट टिक द सोशलिस्ट. सो क्वेश्चन इज नॉट टफ माई फ्रेंड, क्वेश्चन इज नॉट टफ. एंड इफ़ यू सी, अगर आपका कल एग्ज़ाम है एंड आप एग्ज़ाम देकर आते हो एंड यू सी टुमारो, इन द टुमारो इवनिंग यू सी कि यार ये क्वेश्चन कितना ईजी था एंड आई जस्ट डिड इट रॉन्ग. लाइक आर्टिकल 14 के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है. सो आर्टिकल 14 के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया था, इट वॉज अ वेरी सिंपल एंड सम पीपल माइट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, उसको गलत तरीके से करके आते हैं. सो यू शुड नो कि हाँ अगर नॉट दे रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, तो वी हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके, सो ये सारे छोटे छोटे हैक्स हैं जो यू डू नॉट हैव टू बी पैनिक इन द एग्जामिनेशन, राइट. सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, आई हैव टॉक अबाउट द प्रियम्बल के बारे में बात कर दी, जो कि अमेंडमेंट को लेकर पूछा जा सकता है. लाइक हमें अगर लिबर्टी मिलती है तो किसकी मिलती है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव. क्या लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक मिलती है हमें? नो, लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक नहीं मिलती है. तो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ द यूपी PCS इन 2008 में पूछा गया था. सो मैं हर तरह से क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, हर तरह से क्वेश्चंस को देख रहा हूँ कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो अब मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ. लाइक फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर एज अ लैंडमार्क. ये क्वेश्चन जो था 2010 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था. एंड केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का केस आपको आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या होता है यार, इसका मतलब क्या होता है? लाइक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का मतलब ये, इस केस में ये था लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. लाइक बेसिक स्ट्रक्चर इज बीइंग डिफाइंड एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड. तो इस केस में यही था. सो प्रियम्बल से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं. यू गॉट दैट पॉइंट. अब मैं आता हूँ फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड ड्यूटीज़. सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ड्यूटीज़. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. यार यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, यू नो, जस्ट आई नीड टू चेंज माई स्लाइड्स. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर. लाइक एक्सेप्शंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं फंडामेंटल राइट्स में. और फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है. BPSP पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है. और आपको साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए. लाइक हाँ अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हो तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है. सो अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैं आता हूँ. फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? नॉट फंडामेंटल राइट, नॉट फंडामेंटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ऐसे क्वेश्चन पहला पूछा सकता है. और उसमें से दे देंगे यार बहुत सारे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इक्वल वेजेस ऑफ इक्वल वर्क, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछ देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So if you are getting my point, if you are really knowing that this video is very much informative और exam point of view से बहुत important है, so just like this session, nothing else. So आगे मैं बढ़ता हूँ. तो फिर आर्टिकल 14 दे देंगे, आर्टिकल 22, 25, 32 ऐसे क्वेश्चन दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, राइट. तो उसमें पूछ लेंगे आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू व्हाट? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू पर्सन डिटेंशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. ऐसे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एंड यू हैव टू बी लाइक कि हाँ मैच द फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट है. बिकॉज इनमें उनको फायदा होता है ना, इनमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं उनके, और इनमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है. एंड मैच द फॉलोइंग करने का भी ट्रिक होता है, एक आपको हैक्स पकड़ना होता है कि हाँ A और 1 और 3 जैसे पकड़ रहे हो आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो उस चीज़ को आप देखते हुए चलना, ठीक है. सो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो मतलब किसके टाइम पे ये रिमूव हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट से किसके टाइम पे रिमूव हुआ था? लाइक इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे रिमूव हुआ था, मोरारजी देसाई या नरसिम्हा राव, या फिर वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे ये रिमूव हुआ था? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. तो वीडियो को पॉज करना, बताना है. सो आई होप कि आपको अगर पता होगा तो बताओगे आप, अदरवाइज इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन. सो अगर मैं बताऊं कि राइट टू प्रॉपर्टी था वॉज रिमूव ड्यूरिंग द, सो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे ये शायद रिमूव हुआ था, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट्स में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स पूछ सकते हैं, पार्ट्स में कौन से आते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स के आपको पार्ट्स पता होना चाहिए. सो
ये फंडामेंटल राइट से ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, लाइक क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं. हाँ, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या सिटीजनशिप, 2004 का क्वेश्चन है. अब मैं इतना प्रीवियस ईयर क्यों ले रहा हूँ, इतना ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार ये चीज़ें रिपीटेटिवली पूछी जा सकती है. सो इट डजेंट मैटर कि 2010 में पूछा हो, 2019 के पहले में पूछा हो या 2020 में पूछा हो. आप देखोगे 2021 के पहले में भी कितना क्वेश्चन इजी पूछा था, आर्टिकल 14 समथिंग लाइक दिस की क्वेश्चन पूछा था. तो यू शुड नो कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, और ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में पूछी जा सकती है. सो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कहाँ से क्या क्या पूछे जा सकते हैं. लाइक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 12 से लेके, हाँ पता होना चाहिए आपको. राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो कमिंग टू द फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बता दिया है. अब DPSP के ऊपर आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, लेट मी चेंज द स्लाइड फर्स्ट. या सो DPSP के ऊपर आते हैं. तो यार DPSP में भी क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, पहली बात तो यार कौन से पार्ट में आता है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद DPSP में जो चीज़ें डिवीज़न की गई है उसके ऊपर पूछ देंगे. फिर वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल प्रियम्बल या फिर DPSP. तो ये चीज़ें पता होना चाहिए. अभी तो मैं DPSP बोल रहा हूँ तो आप बोल दोगे कि हाँ DPSP से ली गई वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है. सो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि हाँ ये सारे जो कंसेप्ट हैं कहाँ से लिए गए हैं. लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, check which is paid on a bank convenience, who told this. ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पता होना चाहिए. स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पता होना चाहिए. लाइक यू हैव टू रीड इन अ वेरी क्रिप्स मैनर. और आपको हर चीज़ें नहीं पढ़नी है. इफ़ यू आर रीडिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी फ्रॉम द बेस टू द एंड. आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज़ वाई इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So you cannot ignore all these topics because CDS 2005 में भी एक क्वेश्चन पूछा था. CDS अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल DPSP के भी क्वेश्चन पूछा था 2019, 2018. ये सारे क्वेश्चन इंडायरेक्टली पूछ लेते हैं कैसे भी करके, इंडायरेक्टली या फिर करंट अफेयर से लिंकेज करके पूछ लेते हैं. सो आपको इनसे इग्नोर नहीं करना है. फर्स्ट थिंग इज दिस. सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द गांधी मोरल फिलोसफी, लाइक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. गांधीयन फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. फिर लाइक प्रोविजन ऑफ द लीगल एंड एड एडवाइस, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज, प्रोटेक्शन ऑफ द मोमेंट्स एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. ऐसे चीज़ें पूछी जा सकती है. गांधीयन, लिबरल, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा. इफ़ यू आर रीडिंग द लूसेंट ऑल्सो ना, तो देन वहाँ पे भी आपको अगर लूसेंट से पढ़ रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि हाँ इट्स द ईजीएस्ट पार्ट एंड वहाँ पे चीज़ें क्रिप्स दी हुई है, तो अगर लूसेंट से अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट या DPSP पढ़ रहे हो, तो जस्ट गो इन डीप. और डीप कहाँ पे जाओगे? गो टू द इंटरनेट. आप इंटरनेट पे सर्च करो, गो टू द M. लक्ष्मीकांत और दैट पर्टिकुलर for that particular topic only. You do not have to read whole Lakshmikant right now. Okay. So coming to the fundamental duties. Fundamental duties के ऊपर आता हूँ मैं. Firstly, don't go upon my spelling. I told you earlier also. So fundamental duties के ऊपर आते हैं यार. Which article of Indian Constitution enumerates the fundamental duty of Indian citizens? अब बताओ कौन सा आर्टिकल. ऐसे क्वेश्चन तो पूछते हैं. 50A, 51A, 50B या 51B. बताओ. या दैट्स करेक्ट. आपने जो सोचा वो सही है, 51A. गेटिंग माई पॉइंट. तो ऐसे क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे जाते हैं. सो अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने सारी हैं, कौन से पार्ट्स में आता है, ये तो मैंने बता दिया आपको. लाइक ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको 4 ऑप्शन दे देंगे. लाइक टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पो, सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल. तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? आई टोल्ड यू अर्लियर दे फोकस मोर ऑन द नॉट. इनमें से कौन सा नहीं है, दे फोकस मोर ऑन दैट. और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं इस पे. सही है. तो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड कि आगे क्या पढ़ना है. लेट मी गो टू द स्लाइड फर्स्ट कि मैंने क्या लिखा था. या तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज बता दिया, DPSP बता दिया.
अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, अब इनको अगर आप पढ़ रहे हो तो इफ़ यू आर स्टडिंग द यूनियन पार्ट तो स्टेट तो क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। इफ़ यू आर स्टडिंग द यूनियन पार्ट, आपका अगर यूनियन पार्ट पे कमांड है तो डेफिनेटली आप स्टेट को रिलेट कर सकते हो। अगर आप लाइकवाइज अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर स्टडिंग द प्रेसिडेंट पार्ट, इफ़ यू आर स्टडिंग द प्रेसिडेंट पार्ट तो आपको गवर्नर के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज स्टेट और यूनियन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बिकॉज सम डिफरेंसेस मैटर्स। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इसको इम्पॉर्टेंट तौर पे बता रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूनियन स्टेट को डिफरेंसेस पढ़ने हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या पूछ लेंगे यार, पूछ लेंगे रायसाना हिल जो था, लाइक वेयर इज रायसाना हिल, तो ये रायसाना हिल क्या है बताओ, हाँ, वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, रायसाना हिल कहाँ है, जहाँ पे क्या सिचुएटेड है, राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है। ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन ऑफ हिज पोस्ट, ये चीज़ें पूछ सकते हैं, लाइक एनी नंबर ऑफ टाइम, 6, 7, कुछ भी, किसी भी टाइम के किसी भी चीज़ें के लिए हो सकते हैं। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट विशेज टू रिज़ाइन, लाइक अगर आप मान लो, अगर इन केस प्रेसिडेंट विशेज टू रिज़ाइन, टू whom he is to address the resignation letter, किसको देना पड़ेगा, वीपी को देना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। सो दीज 3 थिंग्स लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, यूनियन में पढ़ रहे हो, स्टेट पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सो आगे बढ़ता हूँ, पंचायती राज। पंचायती राज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अमेंडमेंट पूछते हैं, 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है, किससे रिलेटेड क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पंचायती राज पढ़ रहे हो तो पंचायती राज में अमेंडमेंट्स जो हुए हैं और इसमें क्या क्या केसेस आए हैं, पंचायती राज के क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये पंचायती राज के ऊपर हो गया। अब न्यूज़ वाले जो टॉपिक्स होते हैं यार, न्यूज़ वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूज़ वाले टॉपिक्स लाइक आपको कवर क्या क्या करने हैं। अब न्यूज़ वाले टॉपिक्स में यार मैं अगर बताना चाहूँगा तो जैसे हो गया फाइनेंस कमीशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी एक बार आप पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कैसे, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, इनके सारे पावर्स पढ़ लो आप। अभी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हो तो यू जस्ट हैव टू राइट द रनिंग नोट्स। आपको राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं करनी है, यू हैव टू फोकस ऑन द रनिंग नोट्स कि हाँ आप यूपीएससी पढ़ रहे हो या सीएजी पढ़ रहे हो या फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हो या एनसीबीसी पढ़ रहे हो या एनसीएससी पढ़ रहे हो, तो इनके आपको क्या करना है, यू हैव टू बी लाइक कि इनके पावर्स क्या क्या हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, इन चीज़ों में डिवीजन करना है, ठीक है। अब अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पढ़ रहे हो तो उसमें जस्टिस वर्मा का जो केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझ रहे हो, पीएम अगर पढ़ रहे हो, अगर मैं पीएम की बात करता हूँ, पीएम पढ़ रहे हो तो उसको करंट अफेयर से लिंकेज करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर से लिंकेज, जैसे कि हाल ही में अगर जो बाइडन से मिलने गए थे प्रेसिडेंट, तो क्यों गए थे, व्हाट वर द मेजर रीजंस, लाइक ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। आप उसको यहाँ से पीएम को अगर पढ़ रहे हो तो आपको पीएम के जो कैसे इलेक्ट होता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें पीएम का बारे में पता होना चाहिए। ये पीएम जो होता है किसका किसका हेड होता है। नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हो तो नीति आयोग के बारे में पढ़ो कि नीति आयोग जो होता है, प्रेसिडेंट इसमें से किसका हेड होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, लाइक अगर आप आर्टिकल, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो उसको माइंड मैप से पढ़ा करो। लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो तो माइंड मैप बना लो। पहले कोई चीज़ें का माइंड मैप बना लो, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे कैसे करना है क्या, ठीक है। अगर आप बात कर लो आर्टिकल 262, आर्टिकल 262, 263, ये इंटर स्टेट रिलेशंस जो होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूँ जो PYQs में पूछे गए हैं, दिखे गए हैं मुझे, ठीक है। अगर इमरजेंसी पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ लो यार, उसमें प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, उसमें नेशनल इमरजेंसी रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट अब मैं क्यों बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट को आपको करंट अफेयर से लिंकेज करना पड़ेगा कि हाल ही में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लाइक आर्टिकल 16 के थ्रू क्या होता है यार, आर्टिकल 16 क्या होता है वो बताओ आपको मुझे कमेंट में। और आपको पता होना चाहिए कि हाँ लाइक सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड द NDA
एनडीए में अलाउ कर दिया है गर्ल्स को, तो इस कौन से आर्टिकल के थ्रू ये होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द इक्वल ऑल पीपल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उसके थ्रू ये चीज़ें हुई है। तो मैंने आपको पंचायती राज में 73rd या 74th अमेंडमेंट बताया, और लाइक ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। लाइक प्रेसिडेंट अगर पढ़ रहे हो तो उसके पावर्स पढ़ लो, इलेक्शन कमीशन के पावर फीचर्स पढ़ लो। फिर अगर आप इतना ही चीज़ अगर पढ़ लेते हो तो इतना चीज़ें बहुत होता है आपको, एंड डेफिनेटली इट विल मेक टू द वन पॉइंट कि आप ये चीज़ें आप कितने दिन में कवर कर सकते हो, लाइक 6 to 7 डेज़ में, 6 to 7 डेज़ में, दैट्स इट। और 6 to 7 डेज़ में कवर कैसे करना है? फर्स्ट डे अगर आप पढ़ रहे हो, सो फर्स्ट डे का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए, लाइक अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहा हूँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं लाइक 15 ईयर्स से क्या पूछेंगे, सबसे पहले मैं वो देखूंगा, एंड मैं किसी और पे भरोसा नहीं करूंगा। लाइक आई डू नॉट हैव टू बिलीव ऑन सम अदर पीपल कि हाँ ही सेइंग कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक आई हैव एनालिसिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, जस्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सी कि हाँ इस रेंज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, सो जस्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हाँ इस रेंज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो सीइंग दैट सिनेरियो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सो जस्ट रीड दैट पार्ट ओनली। एंड हाँ, जो मैंने ऊपर ही टॉपिक्स लिखे थे, लाइक फंडामेंटल राइट्स लिखे थे, DPSPs लिखे थे, प्रियम्बल लिखे थे, सेलिएंट फीचर्स लिखे थे, पंचायती राज लिखे थे, दीज आर द इंपॉर्टेंट, एंड इसको आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कवर करो। आपको इसको एक एक माइन्यूट डिटेल के थ्रू कवर करो, बिकॉज इतना चीज़ें अगर क्लियर होते हो तो लाइक 15 से अगर 16 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूँ यार, मिनिमम बोल रहा हूँ, लाइक मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक 20 to 22 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, बट 15 क्वेश्चन में होते हैं, तो यार आपको कम से कम 10 तो अटैम्प्ट कर लो, 10 तो अटैम्प्ट कर ही सकते हो। एंड 5 क्वेश्चंस आई नो मोर ओवर लेस फ्रॉम द करंट अफेयर रिलिंकेज पार्ट, तो डजेंट मैटर एट ऑल। अगर 30 दिन में भी 15 में से अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो सम अदर पार्ट्स इज ऑल्सो लेफ्ट। साइंस पार्ट है तुम्हारे पास, यू हैव द current affair part, you have the history part, you have the geography part, as I have told you the geography videos of the that strategy वाला video कि हाँ वो सारे important topic and how to read that topics, so just go on that, check that video कि हाँ मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। so like आपको ये चीज़ें आपको यहाँ से clear हो जाएगी। so पॉलिटी के लिए आप बेसिकली आप 10 से 11 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन टॉपिक से जो मैंने बताया आपको। सो बेसिकली आपको अगर पढ़ना है तो इन चीज़ों को आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना है। एंड 6 to 7 डेज में या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप कवर कर सकते हो 6 to 7 डेज में, बिकॉज दीज आर द क्रूशियल डेज एंड यू डू नॉट हैव टू बी इमोशनल इन दीज डेज यार, लाइक होगा कि नहीं होगा, and you do not have to think all that shits, and this will create a very moreover less कि आपके सिलेक्शन में आपको चीज़ें में दिक्कत ला सकती है। so just go and just sit for the study for the 6-7 days for the polity part के लिए, and definitely will clear all the polity doubts, all the polity section जो आपको important यहाँ पे लगा है। so I hope कि this video was helpful and relevant for you, and if you just like this video, it would be a kind of a motivation for all of the Officer Mind channel, and we'll be providing the next video